So today I want to talk about the great is your faith. तो आज हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास महान है। See that's and in this room we have so many problems. आप ये देखिए इस कमरे में इस जगह पर बहुत सारी परेशानियां हैं। Everyone has a different हर problems. किसी के जीवन में अलग तरह की परेशानी है। And you need somebody to help you. हम सबको ही किसी न किसी की जरूरत है हमारी मदद करने के लिए। So some are having problem sickness. किसी को बीमारी हो सकती है, Some are having problem financial. किसी को पैसों की परेशानी हो सकती Some है, are having problems of family. किसी को परिवार में परेशानी हो सकती Or है, some are having problem of what is that study. किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, Or some are having problem of demon possess. किसी के अंदर बुरी शक्तियां हो सकती है पोजेस कर रखी हो, Or some are having problems of what is kala jadoo. किसी पर काला जादू हो रहा होगा, Or some are having problems of poverty. या किसी के अंदर गरीबी की परेशानी होगी। So we have a lot of problem here. तो जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन में अलग अलग परेशानी And है। if I say that, okay, sister, you tell, everyone will tell different. और पास्टर कह रही है अगर मैं एक व्यक्ति से पूछती जाऊँ कि आपकी परेशानी क्या है, तो हर व्यक्ति अलग परेशानी ही And बताएगा। everyone will not tell the same thing. कोई भी एक जैसी बात नहीं बोलेगा। So here and then we need help. और हम सबको ही मदद की जरूरत You है। know that somebody you need to have हमें पता है हमारे जीवन में किसी न किसी की to जरूरत get है, out of your situation. ताकि हम अपनी परिस्थितियों से बाहर आने पाए। And nobody is saying that I didn't have problem. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Even the person is having everything, financial, house, money and family also, still we have a problem. अगर कोई व्यक्ति है जिसका परिवार है, बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, उसके बाद भी उसके जीवन में कोई न कोई परेशानी होगी। So the world that we are living is so many, every day that we are facing so many challenges and so many problems. इसका मतलब इस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पर हमेशा हर रोज कोई ना कोई परेशानी को हम जूझते ही रहते हैं। And then many people who are not here outside, they have so many problems. और अगर जो लोग यहाँ नहीं बैठे हो, यहाँ से बाहर है, वो लोग के जीवन में भी प्रॉब्लम है। And even your own family, हमारे खुद के परिवारों में, the same family under the one roof, under the one room, under the one kitchen, under the one table, eating together, everyone has a different problem. आप देखिए अगर हमारा एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, वो 10 लोग एक ही मेज पे खाना खा रहे हैं, पर फिर भी उन 10 लोगों की परेशानियां अलग होंगी। So your children, you have 10 children. अगर हमारे मान लो एक इंसान के 10 बच्चे हैं, One person will say, "Mommy, मेरा दर्द पेट रहा है." One person will say, "Mommy, मेरा पेट दर्द रहा है." One person will say, "Mommy, मैं स्कूल नहीं जाएंगे." One person will say, "Mommy, वो खरीदो, मेरे को सही है." One person will say, "Mommy, मेरा प्रॉब्लम भी है." और one person will say, "बीमार है." So there is so many problems. तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह की परेशानी बताएगा। So we need somebody to help us. और हम सबको ही किसी न किसी की जरूरत है हमारी मदद के लिए। Same thing in this chapter. और ऐसे ही इस अध्याय में भी And there is a woman. एक औरत की बात हो रही है। She has gone through so many places वो अलग अलग जगहों पर गई for healing for his daughter. कि उसकी बेटी की बीमारी ठीक हो जाए। His daughter was possessed by demons. उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी। She went to doctor. वो डॉक्टर के पास गई, Doctors didn't heal. डॉक्टर ने ठीक नहीं And किया। she was so much depressed. वो इतनी डिप्रेस हो गई, And she was so much worried about her वो daughter. अपनी बेटी के लिए इतनी चिंता कर रही थी। Because this daughter, when the demon possesses, the Bible says that she was, violence, she was throw things and she cannot able to control. क्योंकि अगर उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, तो वो लड़की बार बार शोर मचाती होगी, चिल्लाती होगी, सामान फेंकती होगी। And then also she said that the demons have possessed that she used to be anger. और जब उस पर दुष्ट आत्मा आती थी, तो उसको गुस्सा भी आता होगा। And the Bible says that she have a violence. She used to try to kill people and she used to kill herself. और बाइबल ऐसे बताती है कि जब उस पर दुष्ट आत्मा आती थी, वो अपने आप को भी मारने की कोशिश करती थी। So the mother was really depressed, worried तो about इसका मतलब उसकी this. मम्मी बहुत ज्यादा चिंतित रहती होगी उसको लेकर। And she took to so many places, but she cannot able to heal this daughter. और वो अपनी बेटी को सब जगहों पर लेके गई, लेकिन फिर भी उसकी बेटी के जीवन में चंगाई नहीं आई। And she had no way out. कोई रास्ता ही नहीं था। And she was really needed somebody to come and help her daughter. और वो औरत सोच रही कोई तो आए मेरी मदद करे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। And she was taking here and there. वो अलग जगह पर लेकर That जाती होगी। very beautiful day. तो एक सुंदर दिन क्या हुआ? Wonderful day. एक When सुंदर you read the whole chapter, अगर आप पूरा चैप्टर chapter पढ़ें 1 to Jesus was come to the Jerusalem. कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए, Then he departed and he went to the Tyre and Sidon, the place. और टायर और सीदोन में चले गए। You read the 21. Jesus went out to the from there and he departed to the region of Tyre and Sidon. 21 में लिखा है
यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गए। So the Bible said that this place is the Gentile place, unbeliever place. मतलब सूर और सैदा एक ऐसी जगह है जहाँ पर अविश्वासी लोग रहते थे। They were Canaanite people, वो कनानी लोग थे, and they were not believing Jesus वो Christ. यीशु में विश्वास नहीं करते थे। But Jesus was departed from his country and he went to the another country. लेकिन यीशु मसीह अपने शहर को छोड़ के इस जगह पर चले। So that place is that people doesn't know that who Jesus is. और यहाँ पर लोग नहीं जानते थे कि आखिर यीशु मसीह है कौन। So now maybe Jesus has went to Delhi and he went to the UP, Haryana, the गांव people that who didn't believe in Jesus Christ. तो हम समझ सकते थे यीशु मसीह अलग-अलग गांव में गए होंगे और गांव के लोग जैसे यीशु मसीह को नहीं जानते थे। Then this woman, तो ये औरत know that Jesus come to his place. तो ये औरत ये जानती थी कि अच्छा यीशु मसीह मेरी जगह पर आए। When you read in Deuteronomy, अगर व्यवस्था में they talk पढ़ते हैं about this lady. इस औरत के बारे में बात, This woman is a Canaanite. ये औरत एक कनानी स्त्री थी And was the generation of Doom. You know, Doom means like people who are really cursed by God. तो ये जो औरत थी ये उस पीढ़ी उस परिवार से नाता रखती थी जिन लोगों को प्रभु ने श्राप दिया हुआ। So she was cursed by her generation was cursed. मतलब उसकी पूरी पीढ़ी पे श्राप था। So now the Bible talk about the Tyre and Sidon. This is the place that people no one is believing Jesus Christ. तो ये वो दो जगह है सूर और सैदा जहाँ पर कोई भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था। So now Jesus entered to that area. अब यीशु मसीह उस जगह पर आए। Then this woman, अब ये औरत क्या हुआ, wherever Jesus go, जहाँ पर भी यीशु जाते थे she was crying out. वो बार-बार रो के चिल्ला रही। How she do? कैसे कर रही थी? When I read, you know, some part that Jesus was reacted very outward. Jesus was cursing. Jesus was, you know, ignored her. और आप देखिए जब ये औरत बार-बार यीशु के पीछे जा रही थी और बार-बार चिल्ला रही थी तो यीशु मसीह उसे इग्नोर कर रहे थे, उसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया। That's why in the verse 12 said, "Behold, a woman Canaan come from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter was severely demon possessed." You know, by very evil, very badly, demons was possessed. अब 22वें वचन में क्या पढ़ते Verse हैं? 22. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। See, but this lady, how he come to know that Jesus is the son of David? आप ये देखें इस औरत को ये कैसे पता चला कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है? Son of David talk about, "Oh Lord, the son of David, have mercy on me." Means, you know, the Messiah. He was talking about the Messiah. अगर वो बोले दाऊद की संतान मतलब वो यीशु मसीह को समझती है कि हाँ ये तो मसीहा है। So now Jesus was not in Israel. अब यीशु मसीह उस समय इज़राइल में नहीं Jesus थे। was in Tyre and Sidon. So that in that area. तो सूर और सैदा में यीशु मसीह थे। So now this woman तो ये औरत cried out, रो रही है and Jesus wherever she go. और जहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं See, the Bible when you are the Bible, you know, so when you read like that, but when you study the Word of God, they were giving so many information. I was reading the Word of God, so many information I got it from the Bible. अगर आप ये देखें आप बाइबल में वचनों को पढ़ते हैं बहुत साधारण लिखा है, लेकिन अगर आप कुछ बाइबल जैसी उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है या आप YouTube पे देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जानकारी है इन वचनों के बारे में। So the Bible said that this woman was really crying out. She really depressedly needed healing about तो this ऐसे बाइबल matter. बताती है कि ये औरत बहुत डिप्रेस थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। And in his area, nobody cannot heal that daughter. और क्योंकि उसके एरिया में जो यहाँ पे लिखा है सूर और सैदा में वहाँ पर कोई भी उसकी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहा था। Nobody. कोई भी नहीं। So she was, you know, hopeless, and she was really need somebody to come and heal. और अब उसके जीवन में उम्मीद खत्म हो चुकी थी, उसे किसी की जरूरत थी कि कोई तो आके मेरी बेटी को ठीक करे। So now Jesus was coming there, अब यीशु मसीह वहाँ पर आया, and she was run to Jesus Christ. अब जैसे यीशु है वो Wherever she go, यीशु के पीछे भागने लग गई। she said, "Son of David, have mercy on me. My daughter was really, you know, demons was really possessed, and she was really in bad situation." और यीशु मसीह जहाँ जा रहे थे उनके पीछे भाग रही थी, चिल्ला रही थी, बार-बार कह रही थी, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। I really need it. मुझे जरूरत है आपकी, Please have mercy on मुझ me. पे दया करें। Then what they do? तो क्या हुआ? Jesus was ignoring. अब यीशु मसीह उस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे। He was ignoring. वो चिल्ला रही है पर यीशु मसीह ध्यान But नहीं दे this रहे। woman never give up. पर ये औरत ने हार नहीं मानी। This woman never give up. वो हार नहीं मान रही। Jesus says, you know, ignore. Some people screaming. वो औरत चिल्ला रही है, यीशु मसीह देख तो रहे हैं पर इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। Because when you are depressed, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड हो, when you are really need something, आपको सच में किसकी जरूरत होती है, when you really need healing, आपको सच में चंगाई when चाहिए, you say the doctor will say that you will die. और कोई डॉक्टर आपको बोले तुम तो मरने वाले हो।
your room, अपने कमरे you में lock it, कमरे को you दबाओ, cry out and shouted, and Lord have mercy on me. आप रोगे चिल्लाओगे प्रभु मुझे बचाओ मुझे ठीक करो। I believe everyone have that kind of situation you face. आप देखें हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आई होगी एक बार, You become hopeless, आपको फिर कोई मदद and करने वाला nobody नहीं doesn't know your situation, और कोई नहीं जानता कि मेरे जीवन में हो क्या रहा or है, nobody cannot able to understand you. कोई नहीं समझेगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा Even है, your sons and daughter, मेरे बेटा बेटी भी नहीं even समझेगा, your husband, मेरा पति भी नहीं even समझेगा, your wife. मेरी पत्नी भी You नहीं might be समझेगी। in that situation. How many phases like that? आप देखें कितनों के जीवन में ऐसा See, हुआ this होगा। lady is praying. आप ये देखिए ये औरत This प्रार्थना is the prayer. ये प्रार्थना है उसकी, She was crying out, वो चिल्ला रही है Lord have mercy on कि me. प्रभु मुझ पे दया I करो, really need my daughter to be मुझे healed. सच में चाहिए कि मेरी बेटी ठीक I हो am जाए, in bad situation. बहुत बुरी I am परिस्थिति in hopeless, उम्मीद नहीं है, helpless. Nobody cannot help. कोई मदद नहीं You कर पा only रहा, can do it. सिर्फ आप ही कर सकते हैं, Have mercy on मुझ me. पे दया करें। Jesus was listening, अब यीशु but सुन रहे हैं, ignoring. पर इग्नोर कर रहे हैं। Listening, but Jesus said, "What is?" No, just ignoring. यीशु मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर कुछ भाव नहीं दे रहे। See, you also need sometimes God is not hearing my prayer, or sometimes we are crying out with broken heart. कई बार हम भी रो रो के प्रार्थना करते हैं अपनी परिस्थिति में, हम सोचते हैं परमेश्वर तो सुन ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है In your हमारे life, such a situation that you face, क्या आप लोगों के जीवन में like कभी so होता है? hopeless. कोई उम्मीद ही नहीं होती। You might not be demon possessed, हाँ हमारे अंदर दुष्ट आत्मा तो but नहीं, something that you go through in life that कुछ आपकी लाइफ में ऐसा this होता is the time that my life will be end. कि अरे मेरी लाइफ तो खत्म ही होने वाली है। All of them. Yes. So, Meravita, you know, when I was finished Bible college, जब पास्टर कह रही मेरा बाइबल कोर्स खत्म, I really don't know what to do. पास्टर कह रही मुझे नहीं पता When क्या I करना। go home, जब पास्टर घर गई, my parents went to feel guilty. तो पास्टर के मम्मी पापा खेती गए थे, Then I used to lock my room, तो पास्टर अपने कमरे को बंद करती थी, and I used to kneel down and cry और out, पास्टर घुटने पे आकर रोती थी, चिल्लाती थी, Lord, show me the way. प्रभु रास्ता दिखाओ। Now I finished my college, बाइबल कॉलेज तो खत्म and हो where गया, I need to go, करना क्या है, and what I need to stop, क्या शुरू करना है, I don't know. मुझे पता ही नहीं And I है। used to cry out, और पास्टर के लिए मैं रोती थी, and my parents, nobody doesn't know. और पापा को नहीं पता, The village was silent, everyone was going to kitty, and children went to school. और सब लोग बच्चे भी स्कूल गए हुए थे, सब जगह शांति, सब लोग खेत में गए हुए थे। Till now I remember. आज भी पास्टर को याद That है। room now in my house, we have already new building again. That room has already gone. पास्टर कह रहे हमारा घर दोबारा बन गया है, तो वो कमरा अब है नहीं, And the different side we make another room again. अब दूसरा कमरा बन गया है, And now that place become a garden of vegetable. अब वहाँ पे गार्डन बन गया है। But whenever I go home, और पास्टर के जब मैं घर जाती I हूँ, see that place. पास्टर जगह को देखती That I हूँ, kneel down and cry with God, in so many days, in so many months. पास्टर ने मुझे याद है कि मैं कितने दिन कितने महीने उस जगह पे बैठ के रोती थी। So those prayer, तो वो प्रार्थना है, God is answering. प्रार्थना है, And परमेश्वर ने that's जवाब why दिया, I'm here. और इसलिए पास्टर यहाँ पर है। And those days I'm really broken heart. और उन दिनों में पास्टर का दिल सच में टूटा हुआ I है। really don't know what to do, how to do the ministry, and who will call me. I really don't know. पास्टर कह रही बाइबल कॉलेज तो खत्म हो गया, लेकिन मन में इतने सारे प्रश्न है, कौन मुझे बुलाएगा, करना क्या है, आगे So क्या I करना was really in need, पास्टर and I cannot share to और people, पास्टर लोगों से बात नहीं पा रही थी, and I cannot share to my pastor, पास्टर से भी नहीं बात पा रही, even my parents. इनके माता पिता भी। But I cried out to God. मैंने परमेश्वर से बात करी, Then so after 2-3 months, तो 2-3 महीने के बाद my auntie told me, let us go to Delhi. तो आंटी ने बोला कि चलो दिल्ली चलते हैं। But God has already planned. परमेश्वर ने पहले ही योजना बना ली। Then I say, I did do nothing here. I better to go to Delhi. तो पास्टर ने जब यहाँ पर बैठ के भी कुछ कर तो रही नहीं, चलो दिल्ली चलते हैं। Then I just follow my auntie, तो आंटी के पीछे पीछे पास्टर भी निकल गई। and I reached here in 2005. 2005 में यहाँ पहुंची, I know 2003. 2003 में। Then I come here. Then we are living here. Hakikar Nagar here. तो पास्टर के तब मैं हकीकत नगर में रहना शुरू किया। So my auntie daughter was Martha. She was studying in the Rohini, class 12. तो जो आंटी है उनकी बेटी मार्था थी और वहाँ पे 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। So he come and drop me to taking care of the child, and she left. तो आंटी ने बोला कि ठीक है तुम यहाँ पे रहो, मेरी बेटी का ध्यान रखो, और वो आंटी चली गई। So because she need early morning going to school, roti banana, breakfast banana, send करना है, तो कोई इंसान को जरूरी था। So but in such a way that God has arranged me here. तो परमेश्वर ने इस तरीके से पास्टर को दिल्ली में लाया। So the same thing, this lady तो ऐसे ही औरत needs somebody to help, उसे जरूरत थी किसी की मदद की। and nobody cannot able to understand her situation of her daughter. और कोई भी उसकी बेटी की परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा था। Now Jesus was passed by अब यीशु जा रहे थे in that country, उस देश में, in that area. उस एरिया So में। she was telling that
Jesus, son of David, please have mercy. और ये औरत चिल्ला रही थी, रो रही थी कि दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। So the pastor said, no, she was crying out. तो बाइबल में लिखा वो चिल्ला रही थी। See, she was crying out. वो रो रही थी। See, Bible says something means really determined. अगर बाइबल में लिखा है कि कुछ चिल्ला रही थी तो सच में ही चिल्ला So रही is थी। crying, oh, ऐसा नहीं है, broken heart, she really needs it. तो टूटे हुए दिल से चिल्ला रही थी और रो रही थी। And she was crying out, but Jesus didn't, ignore her. पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे? इग्नोर कर रहे थे। The disciples were also there. अब चेले भी वहीं पे खड़े थे। And then what the disciples do? चेलों ने क्या किया? Because see, Jews and Gentiles, those they have untouchability. आप ये देखें जो उस समय में जो यहूदी लोग थे और जो गैर यहूदी लोग थे वो उन लोगों को छूते भी नहीं थे, दूर-दूर रहते थे। They cannot able to talk, they cannot able to associate them. वो साथ में बैठ के बात भी नहीं करते थे। Like Brahmins and शूद्र working जैसे class. आप देखें कि ब्राह्मण लोग और शूद्र लोगों को पूछता नहीं है। So Jewish people they thought that they are the righteous people. ऐसे ही यहूदी लोग अपने आप को धर्मी समझते And थे। Jewish people they thought that they are the holy people. वो सोचते थे कि हम तो पवित्र लोग हैं परमेश्वर So के। the Gentile they consider as a dog. तो ऐसे जेंटाइल थे अविश्वासी लोग तो उन्हें कुत्तों की तरह समझते थे वो लोग। See now you will see Jesus talk about dog, this lady. आप यहाँ पर भी देखें यीशु मसीह इस औरत को भी कुत्ता बोलेगा। So now what is that? Now when you are Brahmin, they consider sleeper class, walking class, they consider as nothing. आप देखें जो लोग ब्राह्मण होते हैं, बड़ी क्लास के होते हैं, वो छोटे लोगों को, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते, एकदम जानवरों की तरह समझते हैं। I understand. पास करिए हाँ मैं समझती हूँ। But I don't know you all you are from Hindu, but I see when I went to Madhya Pradesh, I live with the Gursi family, they are really Brahmin. तो पास्टर कह रहे जब मैं मध्य प्रदेश गई थी मैं गुरुजी के साथ रही और वो लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं। Their parents were very strict. उनके माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं। Lower class cannot able to pass their vote. लोअर क्लास के लोग घर के आगे से गुजर भी नहीं सकते। And when they do that, और कर दिया, they will sanctify. वो घर को साफ करेंगे। Or even Guruji have become believer, but still, when somebody does, she will come back and change his dress and was. So they think that they are become a sinner. तो वो लोग सोचते थे कि अगर हमारे कपड़ों को किसी शूद्र इंसान ने छू भी दिया तो हम तो अपवित्र हो गए। I believe you all experience गाँव पे इतना strict है ना Brahmin लोग और क्या था the lower class cannot able to touch, cannot able to associate. Even the marriage to taking place, they will kill them टोकर करके ऐसे भी करते हैं, है ना? So that is how the situation is like that. तो ऐसी परिस्थिति होती है। Jewish people also like that. तो यहूदी लोग भी ऐसे ही होते हैं। The Gentile, the unbeliever, जो लोग गैर यहूदी लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, they are really considered as a dog. उनको कुत्तों में कैसा जानवर समझते थे वो। And they cannot associate. और उनके साथ खाते बैठते नहीं थे वो लोग। So Jesus was in the Gentile place. अब यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर गए जहाँ पर बहुत सारे गैर So यहूदी now लोग हैं। this lady was in with Jesus' disciple, 12 disciples. Jesus, now how many people? 13. आप देखिए यीशु मसीह है, यीशु मसीह के 12 चेले हैं और वो औरत मतलब 13वीं इंसान वहीं पर घूम रही है। That this lady was crying, please help me, and crying out. और ये जो औरत है वो बार-बार चिल्ला रही है, रो रही है, मदद करो, मदद करो। And not slowly also. और आराम से नहीं चिल्ला रही। Then disciples were irritated. अब चेलों को तो इरिटेशन हो गई। This lady, wherever we go, she is crying and following us. ये औरत कैसी है? जहाँ जा रहे बाबा पीछे आई है, अजीब सी औरत है। He told to Jesus, उन्होंने यीशु से बोला, Guru, send them out. अरे इसको साइड करो ना, गुरुजी बोल दो, हटाओ यहाँ से आप। See, they are rejected. उसे नकार रहे थे। See, this lady was rejected. आप ये देखिए उस औरत को चेलों Not ने नकारा। accepted. कोई अपना ही नहीं रहा। So disciple was saying, send them out. अब चेले बोले हटाओ ना So इसको। irritating her boy. अरे इरिटेट कर दी इसकी आवाज। You read the Bible is written. बाइबल में लिखा हुआ है। Read 23. 23 पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा करो क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। See now, this lady how she faced. आप देखो इस औरत को सुन के कैसा Even Jesus Christ himself यीशु मसीह खुद ignoring him. यीशु मसीह खुद भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। This Bible talk about, it is not the 1 hour timing. ऐसा नहीं कि 1 घंटे के अंदर हुआ होगा। Just leave the side. Don't worry. Okay. So now this side is this lady, you see the Bible is when you read Bible. अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, This is not the 1 hour journey, 1 hour story. ऐसा नहीं कि 1 घंटे के अंदर औरत आ भी गई, बात भी करी, चली गई 1 घंटे। So whenever Jesus go, मतलब यीशु जहाँ जा रहे थे, they were crying out, वो लोग चिल्ला रही थी। and she was crying out. वो चिल्ला रही थी। Jesus also hearing. यीशु मसीह सुन रहे हैं।
So they are not ready to help them. वो लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। So they are not ready to help them. तो कोई तैयार है ही नहीं मदद करने के लिए। Jesus also is hearing the cry. Oh, please, David, son of David, you are the Jesus Christ, you are the healer, heal me. तो यीशु मसीह भी सुन रहे हैं, औरत चिल्ला रही है, दाऊद की संतान मुझ पे मदद करो, मुझे मदद करो। But Jesus was not ready. पर यीशु मसीह भी इग्नोर कर He रहे was हैं। going. अरे ठीक The है। lady also never give up. अब वो औरत भी हारती नहीं The है, lady also going. वो भी पीछे Crying out चिल्ला रही है, higher and higher. जोर जोर की। The disciple was so irritating. अब चेले परेशान हो गए, Send them out. अरे हटाओ ना इसको, क्यों हमारे पीछे आ हम रही लोग का है? annoying कर रहा है ना. So irritating. Her sound, her point. इसकी आवाज में परेशान कर रही है, इसको भगाओ यहाँ से। हम लोग का पीछे में कोई इंसान मर गया ऐसे जिस हम लोग का कहाँ गया तभी she was crying in front of them. तो चिल्ला रही थी और यीशु के पीछे चलती जा रही थी। But you know the end, you will see the great thing happening. अब देखिए इस पे क्या हुआ अंत में। So they were crying out, वो बार-बार चिल्ला रही है, and she was crying out, and disciple was saying, we are so irritating, and this lady let them go away, yeah. और चेले क्या बोल रहे हैं, अरे इस लेडी को भगाओ ना यहाँ से, मैं परेशान करती है। And Jesus also not, he was hearing among them they going in that area. और यीशु मसीह उसके चेले सुन रहे हैं कि चिल्ला रही है। Then Jesus turned to the lady. फिर यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा। The woman and the disciple tell them, please, you are the master, you are our pastor, you have the power to send them out. अब चेलों ने क्या बोला कि भाई आप तो हमारे गुरु हो, एक तरह से पास्टर हो, आपके पास तो अधिकार है, आप उसको बोलो चली जाए यहाँ से। You have the power. तुम्हारे पास अधिकार है। Then the disciple said, Guru, send them out. तो चेलों ने क्या बोला कि गुरुजी आप इसको बोलो चली जाए यहाँ से। So even they can send them out, but they know that this lady never give up. तो चेले को भी पता था कि हम भी बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं चली जाए, लेकिन हमारी सुनने नहीं वाली, गुरुजी बोलेंगे तो ही जाएगी। So you are our master. क्योंकि आप गुरु हो हमारे। And she is calling you the son of David. और वो तुम्हें आपको बार-बार दाऊद की संतान Because Jesus is the son of David. यीशु मसीह है। So now if you say she will go away. तो चेलों ने समझा कि अच्छा अगर यीशु मसीह बोलेंगे ना जाकर चली जाएगी। So we are so much irritating. She was so much disturbing our journey, our talking, our communication. She was really disturbing us. ये औरत बार-बार परेशान कर रही है, हम जहाँ जा रहे हैं ना खाने दे रही, ना पीने दे रही, ना चलने दे रही, बस परेशान ही कर रही है। जैसे हम कोई जगह सकते हैं ना, और रास्ता में भी हो, अब मांगना वाला है, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। कितना तक आप पेशेंट करेगा? पेशेंट नहीं होता ना, कितना तक आप प्रभु का बच्चा है, दूसरा को प्यार करना है, दूसरा का हेल्प करना है, आपका तो सुनते हैं, लेकिन आपका कैसा दे दो ना दीदी, दे दो ना दीदी, दे दो ना दीदी, तो आप कैसे मैं बहुत मेरा पास है, मैं पास्टर हूँ, लेकिन मेरा पास है घर से की काम कर, मम्मी पापा को बता दे पढ़ाई कर, मैं ऐसे बोलते हो, वो गुस्सा आते हैं, क्योंकि हम लोग रास्ता में ब्लॉक करते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे करके ना ऐसे दे दो 10 रुपए दे दो 500 दे दो 20 रुपए दे दो, तो आप कैसे फील होते हैं? You can't have patience, you can't show good things to the तो person. जब कोई इंसान बार-बार बोलता है तो हम कितना ही धीरजवंत हो, उस टाइम पे सारा धीरज निकल जाता है। You say इंसान बच्चा मेरा को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इधर जाना है, क्यों मेरा रास्ता में डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों मेरा रास्ता में रोक रहा है, निकल। तो बाद में ऐसे करके so we are not giving us up, so हम इतना चिल्लाता है, गुस्सा करता है, निकलता है। So the same thing this lady was. तो ऐसी इस औरत के साथ भी हुआ। So the disciple was so irritated तो चेले परेशान होने लग गए because she was crying out, क्यों बार-बार चिल्ला रही थी, please help कि me, मेरी मदद करो, I need my daughter मेरी healing, बेटी को ठीक करो, nobody can वो heal, ठीक नहीं कर रहा है, Please. आप हेल्प करो, crying out. चिल्ला रही है। Then the disciple were not 12 disciples, they had no patience. अब 12 चेलों में तो धीरज खत्म हो गया। That's when everyone was looking at the lady. हर कोई देख रहा है औरत को, ये क्या हो रहा है यार? निकाल, हम लोग इतना डिस्टर्ब हो रहा है, हम कोई जगह जाना है, हम लोग का टाइम नहीं है आपका पास, काम करने के लिए, हम कुछ जगह भी जाना है। So they were so much irritated. तो वो बहुत परेशान हो चुके थे 12 चेले। So they were telling to Jesus Christ, send them out. और यीशु से क्या बोला, हटाओ इसको, बोलो जरा चली जाए यहाँ से। Just tell them to go away उसे बोलो ऐसे चली जाए from our road. हमारे रास्ते से। So tell them to go away from our journey. उसे बोलो ना यहाँ से विदा करो, उसे यहाँ से हटाओ, Just tell them to go away from our group. हमारे ग्रुप से दूर हो जाए। So now, see, she was really rejected. आप ये देखो उसे कैसा महसूस हो कि मुझे लोग नकार रहे हैं। Sometimes कभी-कभी you come to people, आप लोगों के पास आते you हो, need help, आप लोगों से मदद मांगते हो, but people were ignoring. लेकिन लोग आपको इग्नोर करते हैं। How you feel? तो हमें कैसा महसूस होता है, We are hopeless. हमारे को उम्मीद नहीं रहती।
See, now you are trying to give up. अब हार मानने की सोच रहे हो। See, sometimes you really need somebody. कभी-कभी किसी की मदद की You जरूरत call हो। them up. आप उन्हें फोन करते They हैं are ignoring, और वो फोन नहीं not उठाते, picking your call. आपका फोन नहीं उठा रहे। Many a time. बहुत बार Nowadays I ignore phone. When some करते हैं तो वो लोग बार-बार में फोन करते हैं ना. Sometimes I'm doing something. कई लोग आपसे कहते हैं मैं बिजी होती हूँ, Or sometimes I'm important message or making program in the WhatsApp. या पास्टर व्हाट्सएप पे या कहीं पर तो वो लोग मालूम है मैं ऑनलाइन पे हूँ, तो कॉल करते हैं। क्या फोन कॉल में करते हैं, पिक नहीं करता तो भी व्हाट्सएप में भी फोन कॉल करता है, मालूम है मैं ऑनलाइन पे, लेकिन मेरा बिजी चल रहा है। तो ना बार में वो काम को खत्म करना ऐसे करते हैं। So now we know it, and then now Jesus also was just ignore this lady. तो ऐसे ही यीशु मसीह उसके 12 चेले भी उस लेडी को इग्नोर कर रहे हैं। And disciples were just ignoring. They are not ready to pray for that. उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई तैयार नहीं They are not ready to cast out the demons. शैतान को बाहर निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। But this lady was really helpless. पर ये लेडी को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। So sometimes you are like that. You are looking for money to help. कई बार हमें पैसों की जरूरत हो सकती है। People are ignored. लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। Whom that you trust. जहाँ पर आप उम्मीद करते हो, Whom that you love. जिस पर आप भरोसा करते हो, प्रेम करते हो, Whom that you think that person can help. जिसको आप सोचते हो ये इंसान तो मदद कर ही देगा, But that person will not pick your call. That person will say no, I cannot. पर वो इंसान कहते नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। Then how you feel? तो हमें कैसा महसूस होता है? We become hopeless. तब उम्मीद खत्म हो जाती है। Oh, that person cannot do. Then who will help me? अगर वो मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? So now this lady, तो ऐसे ही ये disciple was said, send them out. चेलों ने क्या बोला भगाओ इसको। So this lady know that nobody cannot help. तो इस लेडी को पता था कि मैं कहीं और जाऊंगी भी तो मदद तो कोई नहीं And करेगा। now this, and then also Jesus was just ignoring him. और वो देख रही थी कि यीशु मसीह मुझे बात नहीं कर रहे। Now she was rejected. अब उसे नकारा गया था She felt so bad. और उसे बहुत बुरा She लगा, felt so broken. बहुत टूटा महसूस हुआ। लेकिन This lady never give up. पर इस औरत ने हार नहीं मानी। She said she's still following. वो बार पीछे चलती जा She रही है। was, have a strong determination. वो उसकी उम्मीद टिकी हुई है। She was persistently asking. वो बार-बार मांग रही है, पूछ She रही was, है, continue praying. बार-बार प्रार्थना कर रही है, Continue praying. बार-बार No, चिल्ला रही है। until unless you do it, I will not leave you. जब तक आप करोगे नहीं मेरी बेटी को ठीक मैं जाऊंगी ही नहीं यहाँ से। Even you send out, I will not go. आप भेजोगे भी तो भी नहीं जाऊंगी। Until unless you answer my prayer, I will not go. जब तक आप मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। She was forget about her shame. She was forget about her things, and she never gave up. She was persistently trusting God, faith to God. No, Jesus can do it. I will not go away. अब उस औरत को लोग नकार रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर फिर भी वो कह रही नहीं जब तक मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा मैं जाऊंगी ही नहीं। That is how Jesus wants us. और यीशु हमसे यही चाहते हैं। हम तो काम करते ना तो प्रभु आंसर नहीं देता तो हम गिव अप करते हैं। When you are asking God, sometimes you are taking fasting, sometimes you are come to church and praying to with pastor and nothing happens, and we just give up. तो कई बार क्या होता है हम उपवास करते हैं, पास्टर के साथ प्रार्थना करवाते हैं, पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, कुछ नहीं होता तो हम हार मान जाते हैं। But this lady never give up. पर इस औरत ने हार नहीं मानी। She was persistently, she was continually, forcingly and praying to वो God. बार-बार प्रार्थना करती ही जा रही थी। And that is God is talking here. This lady bring in this Bible that we must never give up. तो यहाँ पे परमेश्वर यही बताएंगे हमें कि हमें हार नहीं माननी। So now she was rejected. तो उसे नकारा गया And Jesus was ignoring. और यीशु मसीह इग्नोर कर रहे थे। Then second part, फिर क्या हुआ? you will see. Then she was rejected, she was ignoring. Then now Jesus will turn to the lady. अब जैसे चेलों ने बोला कि इसे विदा करो, यीशु मसीह आप बोलते इसे विदा करो, तब यीशु मसीह ने उस औरत से क्या Then बोला? verse 23 ending say that disciple was say, send them out, send her away from us. She cried out after us, but he answered and said, I was not accepted the lost sheep of the house of Israel. अब 23 दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है? पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। 24 उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उस औरत को? इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। See, this lady is a Gentile. अब ये औरत क्या थी? गैर यहूदी। These Gentiles, they are Jews. ये लोग बाकी लोग तो And this lady is a Hindu. अब जैसे कि मान लो अविश्वासी या हिंदू होगी, Or not believing in Christ. मतलब अविश्वासी। Then what Jesus replied to this lady? तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? First thing, Jesus was ignorant and rejected. पहली बार क्या हुआ जब वो औरत आई तो यीशु मसीह इग्नोर कर रहे थे। And now second, अब
दूसरी बार जब Jesus said, अब यीशु ने क्या "Hey बोला? lady, सुनो, I am not coming for you. मैं तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं बुलाया है। I come for my people मैं इजराइल के लोगों के लिए आया हूँ, who are lost, जो खोए हुए, who are not believed. जो विश्वास नहीं I करते। come for that. मैं उनको बचाने के लिए Not आया for हूँ। you all. तुम्हें जैसे लोग Not for you." तुम्हारे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। How that lady would feel? उस औरत को कैसा लगा हो? Deeply meditated the word of God. आप सोचे बच्चे, This is really deep meaning. इसका मीनिंग बहुत डीप है। So Jesus said, I come for my people who are lost from जब you. उस औरत ने बोला मेरी मदद करो, तो यीशु ने बोला मैं तुम जैसे लोगों के लिए नहीं आया, मैं इजराइल के लोगों के लिए आया हूँ। I am not coming for Canaanite people. मैं कनानी लोगों के लिए आया ही नहीं हूँ। So I don't want to help you. तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? See, now Jesus also rejected this lady. इसका मतलब यीशु मसीह ने उस औरत को नकार दिया। He's just giving reply to the lady. उसको जवाब दे रहे, Listen, सुनो, you how much you cry, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, but लेकिन I coming for my people. मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, तुम्हारे Who are लिए lost. जो खोए हुए हैं। And I come for church. मैं चर्च के लोगों के लिए आया हूँ। No, I come to search मैं ढूंढने आया हूँ लोगों को, my own people जो मेरे अपने खोए who हुए are लोग, not believing me, जो विश्वास who नहीं are करते, not trusting me. जो मुझ पे भरोसा I come नहीं, to save them. मैं उनके लिए आया हूँ। Not you. तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ। No, you are idol worship. No. अरे तुम मूर्ति पूजा को Oh, चला no, you are Buddha का worship करते हैं. तो बुद्ध- Oh, Allah का worship करते हैं. मैं नहीं. So now Jesus was also, rejected this. मतलब यीशु मसीह ने उस औरत का नकार किया, But this lady, लेकिन इस औरत ने she was continue faith. वो अभी भी अपने विश्वास में खड़ी है। She said no. वो कहती नहीं, Whatever you want to say, say. जो बोलना है तो बोल लो, But I know that you can do it. पर मुझे पता है कि मेरी बेटी को तुम ठीक करोगे, You have the solution. कि आपके पास सॉल्यूशन है मेरी बेटी को ठीक करने का। See how much disciples say, Jesus said, but she never give up. आप देखो, चेलों ने भी नकार दिया, यीशु मसीह ने भी नकार दिया कि चलो यहाँ से जाओ, फिर भी नहीं She जाए। has so much faith in उसका God. विश्वास कितना मजबूत था। See, if you say that people, you come to ask somebody, अब आप किसी से कुछ मांगने आओ, no door opening. वो दरवाजा ही ना खोले, You say no, don't come here. अरे यहाँ मत आओ, चलो चलो Okay. चलो निकलो यहाँ से, I am not here for you, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे, and I am here for some purpose. किसी काम के लिए आया हूँ मैं यहाँ Because पे। Jesus was in that country, अब यीशु मसीह उस देश में आए, so Jesus had some purpose to come there. काम था वहाँ पर उनको। So now, see, you come to somebody, oh मैं बहुत जल्दी काम है, अब निकल, अभी नहीं है, अभी टाइम मेरा पास टाइम नहीं है, मैं कुछ काम के लिए निकलना है. If you come to somebody to help and that person, when they say like that, how you अगर feel? आप किसी से मदद मांगने आए, वो व्यक्ति बोले चलो चलो यहाँ से टाइम नहीं है, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे Next time thinking, अब जाओ, घर जाओ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास मेरे आपका हेल्प करने का नहीं है, और मैं इधर आया, मैं दिल्ली में आया, मैं कुछ काम के लिए आया, आप निकल. So Jesus also say like तो that. यीशु मसीह ने भी ऐसे ही औरत को बोल दिया। But this lady, पर ये औरत she didn't have sense and disgrace and rejected, and but still she had faith. अब ये देखिए, उस औरत को नकारा गया, शर्मिंदगी भी महसूस हुई, She never go. पर वो गई नहीं, Still she was crying. खड़ी हुई चिल्ला, Please have mercy on me. Whatever you want to say, say it. But I know that you can do it. जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मुझे पता है आप कर सकते हो। हम तो इंसान है ना, प्रभु ने ऐसा बात करेगा, मैं मालूम है, जाके घर वापस आएगा, मेरे को हेल्प नहीं करेगा, प्रभु ने मेरे को भगा दिया, मेरे साथ नहीं आएगा, मैं पास्टर का पास प्रे के लिए नहीं आएगा, मैं बाइबल पढ़ने नहीं पढ़ेंगे, आज का दिन से प्रभु को नहीं मानेंगे. You will just give up like that. हम ऐसे ही हार मान जाएंगे। But God is teaching us. पर परमेश्वर में क्या बता रहे हैं? This lady continued faith. पर ये औरत विश्वास में खड़ी हुई थी। Even though Jesus was ignored, rejected, and Jesus was scolding him, Jesus was replying that I am not here for you. अब ये देखो, चेलों ने नकार दिया, यीशु ने नकार दिया, यीशु ने बोल दिया, भाई मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, पर I come for my people मैं अपने लोगों के लिए आया हूँ, who are lost. जो खोए हुए हैं। I come to search. मैं उन्हें बचाने I आया come to save. हूँ, उन्हें बचाने आया हूँ, Not you. तुम लोगों को नहीं। You people तुम लोग didn't believe me, मुझे विश्वास नहीं and करते, they are not accepting me. मुझे अपनाते नहीं हो। See, sometimes हम ना क्रिश्चियन हैं, हिंदू लोग को हम भगाते हैं, और हिंदू लोग का हम वेलकम नहीं करता, और हिंदू लोग का हम क्या है लाइक, और हिंदू लोग भी हम लोग कैसे हैं, क्रिश्चियन लोग क्या था, बाहर से क्रिश्चियनिटी लेके आया, तो हम लोग का रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता. तो हम लोग को कोई जगह भी चलो ना, हम लोग को बहुत नीचे दिखाता है. So now Hindu people also rejecting us, and they don't want to associate with us. तो ऐसे से हिंदू लोग भी मसीह लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं पसंद करते, उनको नकार देते हैं। आप बता रहे ना, एक इंसान बताता वो क्रिश्चियन बन गया, इवन गैस सिलेंडर नहीं दिया वो, क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गया तो गैस सिलेंडर भी नहीं देगा. See how much that
We are not facing. Many people are facing like that. हाँ, हो सकता है ये चीजें हमारे जीवन में नहीं, लेकिन बहुत सारे मसीहियों के जीवन में ऐसा होता है। हम लोग के सेल्स में एक इंसान बता रहा था, वो क्रिश्चियन बन गया तो गैस सिलेंडर भी वो डिनाई कर दिया। गैस सिलेंडर भी लेने गया था तो क्रिश्चियन लोग को नहीं देंगे गैस सिलेंडर, और क्रिश्चियन लोग को बुक भी नहीं करेंगे। तो क्या पूजा मदर मेरे को बता रहा था, so many years months. बहुत महीने पहले पूजा दीदी की मम्मी बता रही थी। So when they want to take gas cylinder, जब वो गैस सिलेंडर उनको देना था, आप क्रिश्चियन बन गए, आपको नहीं देंगे। So now see people were the Hindu people or people, they are rejecting us. तो बहुत सारे लोग मसीह लोगों को नकार देते हैं। Some are not allow them to make ration. कोई राशन कार्ड नहीं बनाने देता। Some are not allow them to go associate with the people. बाकी लोग से बैठने उठने नहीं देता। So they were rejected you. उनको नकारा जाता। In that situation, अब उस परिस्थिति में how you face? कैसा लगेगा? But you should know that this is your right. पर आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा अधिकार है। I'm also from India. मैं भी भारत का वासी I हूँ। must get it my cylinder. मुझे भी सिलेंडर मिलना चाहिए। You have no right to, because to become Christian, you have no right to remove away. अगर मैं मसीह बन भी गया तो तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे मना करने का। So that kind of determination. तो वैसा डिटर्मिनेशन हमारा So होना now चाहिए। this lady, तो ये औरत, this woman, no, whatever you said, but you are the one who created me. तो यीशु तो उस औरत ने बोला ठीक है आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे पता है आपने हमें बनाया है। And you say that you come for the lost, your people and those who are lost. और आपने कहा है कि अपने लोगों के लिए आए हो जो खोए हुए हैं। But who are no, I am the one who you are created. पर मुझे भी आप ही ने बनाया है। I am not come by myself. मुझे मैं अपने आप नहीं आया हूँ। So you must do it. तो आपको करना ही पड़ेगा। So she used her authority. तो उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। She used her right. तो उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। See, nobody is not created, even though she is a Gentile, God only created. चाहे वो कितने भी किसी अविश्वासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन हर किसी को परमेश्वर ने ही बनाया है। So now she know her right. तो वो औरत अपना अधिकार, I have a right to ask you. उस औरत ने कहा नहीं, मेरे पास अधिकार है तुमसे पूछने Because का। you are God. तुम परमेश्वर, You are the one who created. तुमने हमें बनाया। My daughter and myself. मेरी बेटी और मुझे, You need to do it. आपको करना ही पड़ेगा। So she has great faith तो उस औरत का विश्वास बड़ा था, and never give up. उसने हार नहीं मानी। Amen. Then another again. Now 3 times rejected, and one is rejected. One is Jesus was giving them. I come for the lost sheep. Now you see Jesus will tell also put up. Verse 26. और 25 में क्या लिखा है? This lady 25 read. 25 पढ़ते हैं हम सब। पर वह आई, अब यीशु से बोलते हुए तुम लोगों के लिए नहीं आया हूँ, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ के लिए आया हूँ। अब उस औरत ने क्या हुआ? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और फिर से उस बार बोल रही है मेरी सहायता। अब 26 में क्या हुआ? फिर यीशु ने उसे उत्तर क्या दिया? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। See, Jesus was also taught this lady kuta. अब यीशु मसीह ने इस औरत को बोल दिया कि मैं अपने बच्चों की रोटी से कुत्तों के आगे क्यों डालूं? हाँ, Jesus also गाली देते हैं. You know, and then now here, Jesus said, I come to lost sheep. Then she was worshiping and praying. No, आप करना पड़ेगा. So she was bowed down and asking and word. जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ, तब भी वो औरत उनको प्रणाम करती रही, नहीं प्लीज मेरी मदद करो। Please help me. She was really begging. वो भीख मांगने की तरह से मतलब प्लीज। That's why 25 say ना. The more Jesus said, the more she was crying out, and the more she was bowed down and asking, please you must do it, and kneel down and asking. तो जितना यीशु मसीह से भगा रहे थे उतने वो बार-बार आके घुटनों पे आके प्लीज मदद करो। See, आपने भगा दिया और आपको पकड़ के नहीं मत कर, तो आप कैसे करेगा? हाँ मैं तो ना इतना हाथ हम फेंक देगा. So now when Jesus said like that, she was more coming towards Jesus and bow down and in the Jesus feet kneel down and begging. तो जितना यीशु मसीह भगा रहे थे उतना ही उनके घुटनों में बार-बार पकड़ के प्रार्थना कर रही होगी। Then what Jesus said? अब यीशु ने क्या बोला? See, I will not share my food, even the kuta. You know that 27. तो यहाँ पे क्या लिखा है? 26 में उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी मतलब अपने बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। See, my bread. वो कह रहे मेरे बच्चों की रोटी, the food roti, जो मेरे बच्चों के लिए मैंने बनाया था, or paratha, that you make it, and you don't want to share to other person. आप ये देखिए अपने बच्चों के लिए आप खाना बना रहे हैं, तो अगर के बच्चों का पेट नहीं भरा तो आप उस खाने किसी और को नहीं देंगे। That is the Jesus reply. तो यीशु मसीह ने भी यही उत्तर दिया I am the bread of life, कि मैं जीवन की रोटी हूँ। and I
I can give to my people, but I will not share my bread to the other तो person. मैं आया अपने बच्चों के लिए और ये रोटी मैं अपने बच्चों को दूंगा, तुम्हें क्यों दूं? Then this lady answered, तब इस औरत का जवाब और बढ़िया, अरे ठीक है, लेकिन रोटी खाते हैं, गिरते हैं, भी भूखा नो मास्टर का टेबल से रोटी चावल हम खाते हैं तो गिरते हैं तो कुत्ता भी खाते हैं. So she was giving the very unique answer. तो जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे क्यों डालूं, तो उस औरत ने बोला, हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन जब मालिक अपनी मेज पर खाना खाता है और खाना खाते हुए 2-3 टुकड़े गिर जाते हैं तो वो कुत्ते खाते हैं ना, तो वो तो खा सकते हैं. So now Jesus said, I will not share my bread to my यीशु मसीह ने children बोला bread to कि you. अपने बच्चों की रोटी मैं तुम्हें नहीं बांटूंगा, I come to save my people. मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूँ, I am the son of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, But I cannot give you salvation. पर मैं तुम्हें उद्धार देने नहीं I आया, cannot help you. तुम्हें चंगाई देने नहीं आया. Then this lady never sighed. पर इस औरत ने शर्म नहीं करी, Still she had fed more and more. विश्वास उसका बढ़ता She was गया, continue वो मांगती crying out. चिल्ला रही, No, you must help me. नहीं मदद करनी पड़ेगी Then you आपको. say, okay, you don't want to share your roti. ठीक है, अपनी रोटी नहीं देनी ना, हाँ. खा लो. लेकिन हम ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हैं तो पीस पीस गिरते हैं. वो भी खा सकता है ना, कुत्ता खाते हैं. So that even though kutta will eat the things that falling in your children bread. तो ठीक है, आपके बच्चों के लिए रोटी खाते हुए कुछ टुकड़े गिरेंगे तो वो तो कुत्ता खा सकता है ना. Then this Jesus Christ, तो यीशु मसीह ने बोला, अरे look this girl. इस औरत का विश्वास था, देखो He was saying, क्या बोल रही है. oh woman, तुम औरत, you have a great faith. तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है. And then also disciple will see the great faith in this lady. और चेलों ने भी देखा, भाई इस औरत के उत्तर में तो मतलब कितना विश्वास है इसका. She was not shame. उसको शर्म ही नहीं है मांगने में. Even Jesus was ignored, rejecting. Even Jesus was telling her that no, I will not share my food like that. You are the यीशु dog. मसीह ने उसको इग्नोर किया, उसके बाद उल्टा बोला, ये बोला मैं तुम्हारे लिए आया नहीं. फिर ये भी बोल रहे कि तुम अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे क्यों डालो. फिर भी ये औरत नहीं, Because they consider the Gentile as a dog. क्योंकि वो लोग अविश्वासी को गैर यहूदी लोगों को कुत्ता ही समझते थे. So इतना गाली दिया, वो भी वो इंसान नहीं गया, रो के चिल्ला के प्रभु आप हेल्प करना है, कोई भी आप करने कर, लेकिन आपको मैं जरूरी है, मेरे सिचुएशन आपने हेल्प कर सकता है, कोई मेरा साथ में नहीं सकता. So that is the great faith that she had. तो उसका विश्वास कितना बड़ा था. Then Jesus करना पड़ेगा. कितना तक जीसस इग्नोर करेगा, वो करना पड़ेगा. ये है हम लोग का लाइफ भी. आप इतना ना नहीं मांगते नहीं देते हैं, भी हम लोग को प्रभु हम लोग को दिखते हैं. So Jesus was doing this lady. She was taking her to deeper and deeper. आप ये देखिए, यीशु मसीह जितना उसे इग्नोर कर रहे थे, वो उतना ही गहराई से प्रभु से मांगती जा रही. That is rich. आगे क्या हुआ. That 26 में लिखा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. 27, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई. Oh woman, great is your faith. Let it be as soon as you desire. And her daughter was healed in that hours. See, Jesus saw the great faith in that woman. आप देखो, यीशु मसीह ने उस औरत में कितना बड़ा विश्वास So my देखा. title is that the great faith. तो आज पास्टर बात कर रही है बड़े विश्वास की. So this lady was having so much great आप faith. ये देखिए, इस औरत का विश्वास कितना बड़ा, कितना No महान था. giving up. हार ही नहीं मान रही No है. matter what. कुछ भी हो जाए. What must the Jesus will do? Condemn, gully, rejected. जितना यीशु मसीह को नकारना है नकार दो, गाली देनी है दे दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा. But she said, until and unless you heal my जब तक daughter, आप मेरी बेटी को ठीक नहीं करोगे, I will not leave you. मैं जाऊंगी नहीं. She would cry and follow. और चिल्लाई Wherever जाती she रो रही go, थी. never give up. हार नहीं मान रही है. And it's even that Jesus was already, talk to her. आप देखो, यीशु मसीह ने उसको बोल दिया कि चली जाए यहाँ से. Then Jesus see पर यीशु ने क्या देखा. great faith किस औरत का that विश्वास. Jesus cannot found in his own people. यीशु के मसीह कह रहे, ऐसा विश्वास तो मैंने अपने 12 चेलों में भी नहीं देखा. My Jewish people, मेरे यहूदी my लोग, family, मेरे लोग, they didn't have a great faith in me. ऐसा विश्वास तो वो भी मुझ में नहीं रखते. But the outsider पर बाहर के लोग who have a great faith in me. इतना बड़ा विश्वास मुझ में रखते हैं. So in that moment, उस समय Jesus was moved by her faith. यीशु मसीह का दिल पिघल गया उसके विश्वास देखकर. Jesus was moved by her faith. यीशु मसीह उसने चंगाई देखी उसके विश्वास को देखकर. And Jesus was in that hours. और उसी घड़ी The demons was out.
उसकी बेटी ठीक हो गई, in her daughter. दुष्ट आत्माएं निकल And गई how the daughter was free. और उसकी बेटी ठीक हो गई। Because of she is not give up. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने हार नहीं मानी। When she was rejected, when she give up. आप ये देखो, जब चेलों ने बोला कि चल चल यहाँ से निकल, तो वो चली गई होती। When Jesus said that I am not helping और you. यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम्हारे लिए नहीं When she हूँ। is give up. अगर वो हार मान जाए, She don't want to see shame. वो सोचती नहीं मुझे इतना शर्मिंदा करेगा, वो चली जाए। And she don't want to have a patient. वो धीरज अगर नहीं रखती, Then her daughter will never. उसकी बेटी कभी ठीक नहीं होती। But she never give up. उसने हार नहीं मानी, Persistently, खड़ी रही, strongly, खड़ी रही मजबूत with होकर, patience, धीरज रखी, with humble. धीरज रखी, She was continued. नम्रता के साथ खड़ी Asking for रही, healing. मांगती रही She चंगाई, was continued. मांगती रही, Asking for her daughter अपनी healing. बेटी की चंगाई मांगती रही। Then Jesus saw, तब यीशु ने क्या देखा oh woman, कि ए औरत, you are a great faith. तेरा विश्वास सच में बहुत बड़ा है। I never see my people मैंने अपने लोगों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा just like you. जैसे तेरा है। Continue तो मांगती रही, asking, मांगती रही, continue praying, करती रही, continue fasting उपवास until you receive. जब तक मिलना जाए। And you are really great faith. और तुम्हारा विश्वास सच में महान है। See, because of her great faith, आप देखो उस औरत के महान विश्वास की वजह से her daughter was उसकी healed. बेटी ठीक हो गई। Even not her daughter faith, ऐसा नहीं उसकी बेटी में विश्वास था, but because of her mother faith, उसकी माता के अंदर विश्वास था, her daughter was वो free. बेटी ठीक हो गई। That is God is teaching us here तो today. यही परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं We should have a great faith in कि God. हमारा विश्वास ही परमेश्वर में बड़ा No हो। matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, the world will reject you. दुनिया उल्टा बोलेगी, People will condemn you. लोग उल्टा बोलेंगे, People will say so many gali. लोग गालियां भी देंगे, People will say so many rejected. लोग नकारेंगे भी। But we should never give up Jesus. हमें हारना नहीं है यीशु में। Your life will be so many challenges. हाँ, आपके जीवन में अलग परेशानियां होंगी, You might be at a point to death. आप मृत्यु की घड़ी पर भी आ Or जाओगे, you might be put into prison. या आपको जेल में Or डालो, you might be hunger and sleeping. या आपको भूख के मारे आप सो भी नहीं पा रहे होंगे, Or you might be people will be cast you out from your house. या लोग वो घर से बाहर निकाल देंगे, Or the church of the pastor might be ignoring you. या हो सकता है पास्टर आप पे ध्यान देना छोड़ दे, Or the people will not helping you या लोग anymore. आपकी मदद करनी छोड़ दे। But we should never give up faith in पर हमें यीशु Jesus. मसीह विश्वास नहीं छोड़ना है। So when you have that kind of faith, जब आपका विश्वास ऐसा होगा, surely पक्का God will grant it your heart. प्रभु आपकी दिल की इच्छा पूरी करेगा, Surely पक्का God will answer your prayer. परमेश्वर की प्रार्थना को उत्तर देगा, Surely God will pick you up परमेश्वर को उठाएगा और आपको and He will make you stand. और आपको खड़ा करेगा। But when you say somebody say pastor is not the church is not understanding me or pastor is not loving me and you are stop coming to God. लेकिन कई बार आप सोचते हैं नहीं लोग मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, पास्टर मुझसे प्यार नहीं कर रही, ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, आप चर्च आना ही छोड़ देते हो। Or you're reading Bible, you pray, and when you give up your faith, और जब आप प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन अपने विश्वास को छोड़ना शुरू कर देते हो, there is no way. तो कोई रास्ता नहीं, You will die on that problem. आप उस परेशानी में ही मर जाओगे। But this lady, लेकिन इस औरत ने how much she faced the challenges. इतना इसने परेशानियों का सामना किया। See, we might not be facing that challenges. हाँ, हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं You है, might be different challenges. आपकी जीवन की अलग प्रॉब्लम हो, But our faith in Jesus पर Christ, हमारा विश्वास यीशु our में, belief in Jesus हमारा Christ, विश्वास, our trust in Jesus हमारा Christ, भरोसा यीशु में, we should never give up. हमें कभी हार नहीं माननी। Then you will receive God's blessing. तभी आपको परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। This is the subtitle that God is teaching us. ये इस चैप्टर से परमेश्वर में यही Not सिखाया। to give up God. हमें हार नहीं माननी। No matter what in चाहे your कुछ life, भी हो जाए हमारे जीवन में, no situation that you are कैसी facing, परिस्थितियां, you might be facing that doctor will give up. हो सकता है डॉक्टर आप पे हार मान जाए, Family will give up. परिवार वाले छोड़ दे, Your loved one will give up. आप जिनसे प्रेम करते हैं वो Our छोड़ people दे, might not be या understand, लोग आपने समझना छोड़ दे, but God understands. लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, And God only the one who can give a और solution. परमेश्वर ही है जो आपकी परेशानी का हल आपको दे And सकता है। God only the one who can heal you. परमेश्वर ही है जो आपको ठीक कर सकता Or है, God only the one who can destroy every work of the devil. परमेश्वर ही है जो शैतान के हर एक कार्य को नाश कर सकता है। So this woman, तो ये औरत no, वो जानती थी the only God can कि help her. सिर्फ यीशु मसीह ही मेरी मदद कर सकते हैं, There is no way. कोई और रास्ता That's नहीं, why she is not give up. और इसलिए उसने हार नहीं मानी। No matter what Jesus was rejected, ignoring, and Jesus was telling that you are a dog, उसने कहा कि चलो कोई नहीं, यीशु मसीह को इग्नोर कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, फिर कुत्ता ही क्यों ना बोल रहे हो, whatever, जो भी बोल रहे हैं, no matter कुछ what, भी हो जाए, I trust in you. मैं विश्वास करती I हूँ, believe in मैं you. भरोसा रखती हूँ, You can do it. आप कर सकते हो। So in that persistence, तो उस परिस्थिति में, in that humble, उस patient, खड़े रहने में, self-control, नम्रता में, नियंत्रण रखने में, some
sometimes we didn't have patience. कई बार हमें धीरज की कमी होती है, Sometimes we didn't have self-control. कई बार हम लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते। See, sometimes when people गाली देते हैं, हम डबल देते हैं, हम कंट्रोल नहीं होता। और sometimes हम क्या है, कोई इंसान हम लोग को गुस्सा करते हैं, हम तो कोई इंसान एक जवाब देते हैं, हम दो जवाब देते हैं, हम सुख नहीं करता। But this lady continue asking. पर ये औरत रखी रही, धीरज रखी और मांगती है। See, God is teaching here तो परमेश्वर यहाँ पे क्या बता to रहे be हैं like this lady, कि हमें इस औरत की तरह बनना to है, have a great faith. कि बड़ा विश्वास रखना, No matter what. चाहे कुछ भी हो Your जाए, situation, आपकी your परिस्थिति, condition, आपकी your परिस्थिति, family, आपका परिवार, society, आपका government, सोसाइटी, doctors, सरकार, medicine cannot work. आपकी सरकार, आपकी दवाइयाँ, डॉक्टर चीजें काम नहीं कर रही होंगी, But लेकिन God can work. परमेश्वर करता है। And faith in Jesus उन्हें Christ. विश्वास करें, Believe in Jesus Christ. भरोसा रखें, And the Lord will see your great faith. और परमेश्वर के बड़े विश्वास को And your situation will आपकी go. परिस्थिति बदल जाए, Your problem will go. परेशानी निकल Your जाए, condition will go. आपकी परिस्थिति बदल And जाए। then one thing is here. और एक और चीज, This is the demon possessed person is not asking for Jesus. आप ये देखें, जिस आदमी में, जिस लड़की में दुष्ट आत्मा थी, वो चंगाई नहीं मांग रही, She is not looking for वो Jesus. यीशु को नहीं ढूंढ रही है, And she is sick and she is there. वो बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हुई होगी, But her mother took the step लेकिन उसकी मम्मी ने विश्वास किया to have faith. और कहा कि नहीं, Sometime. कभी-कभी You see, God, that woman, the daughter is not having faith in आप ये Jesus. देखें, उसकी बेटी में शायद यीशु में विश्वास नहीं होगा, But your faith पर आपका is विश्वास very, very important बहुत जरूरी है for other person also. दूसरों की चंगाई के लिए। When you have faith जब आप में विश्वास होता है and in God प्रभु में, and asking for a person to help that और person आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, दूसरों के लिए प्रभु से and मदद pray मांग for रहे हो, that person प्रार्थना कर रहे हो, by seeing your faith, आपके विश्वास को देखकर God can heal them. परमेश्वर उसको ठीक करते हैं। That is why many a time इसलिए बहुत बार all the people who didn't believe in जो Jesus लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, and many people come here they didn't believe और बहुत Jesus. लोग यहाँ आकर विश्वास नहीं करते, They want healing, चंगाई चाहिए, they want blessing, आशीष चाहिए, but through our faith, पर हमारे विश्वास के द्वारा God not seeing that person, प्रभु उस इंसान को नहीं दिखता, God seeing you, प्रभु आपको दिखता है, and God answer your और prayer. प्रभु उस आपकी प्रार्थना का जवाब So देता through है। when you pray, जब आप प्रार्थना that करते person हैं, is healed, वो इंसान ठीक that हो जाता है, demon is cast वो out, दुष्ट आत्मा that निकल sickness जाती is है, healed. वो बीमारी ठीक हो जाती है। So faith is very important. तो विश्वास बहुत That's why when you have faith, तो अगर कोई विश्वास you होता can है, move the mountain. आप पहाड़ों को हिला सकते And when you have faith, हैं, तो विश्वास you होता है, can turn around the situation. आप परिस्थिति को बदल सकते हैं, Even though you didn't have that situation. वो परिस्थिति आपकी तो नहीं है। So this woman have faith for her daughter. तो ऐसे इस औरत का विश्वास प्रभु में था अपनी बेटी के लिए, Come to Jesus. यीशु No के her पास। own sickness, उसकी खुद की बीमारी नहीं थी, but for her daughter. अपनी बेटी की। So you faith. इसलिए आपका Your विश्वास mother, father आपके मम्मी पापा can change. को बदल सकता है, Your faith आपके विश्वास your से church आपकी कलीसिया can grow. बढ़ सकती है, God can bless. प्रभु आशीष Your दे, faith, आपके विश्वास the से whole India पूरा भारत can believe in Jesus. बदल सकता है, यीशु में आ सकता है। So when you have that great जब faith, ऐसा विश्वास रखते हैं, you can do anywhere and you can change people life, आप दूसरों के जीवन में बदलाव कर सकते हैं, transform life. बदल सकते हैं। But another thing, पर एक और चीज, by your faith, आपके विश्वास से God listening and answer your prayer and heal that person. प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब सुन के दूसरे व्यक्ति को ठीक कर देता है। Don't think that that person believe in Jesus. पर आप तब ये ना सोचे कि अगर वो इंसान ठीक हो गया इसका मतलब उसका यीशु में विश्वास है। Sometimes वो तो ठीक हो गया, प्रभु का विश्वास हो गया, हम इसे सोचते हैं नहीं। That person might be getting healing, but until and unless the person didn't believe in Jesus Christ, they will never enter to the God's हो kingdom. सकता है उस व्यक्ति ने चंगाई तो पाई लेकिन उसने अब तक यीशु को नहीं पाया है और इसकी वजह से वो उद्धार नहीं पा Healing पाया। will never take you to heaven. आपकी चंगाई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी। हम सोचते हैं ना कोई इंसान आके प्रार्थना कर दिया, heal कर दिया तो हम सोचते हैं क्रिश्चियन बन गया। No, everybody, man or woman, sick or not sick, believe in Jesus. Only that person will save and enter to God's कोई kingdom. इंसान ठीक हो, अमीर हो, गरीब हो, चंगाई पा चुका हो या बीमार हो, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन जब तक वो यीशु में विश्वास नहीं करेगा उद्धार नहीं पाएगा। Your prayer God can answer. आपकी प्रार्थना के द्वारा Heal people. वो ठीक तो हो सकता है, Their problem can solve परेशानी जा तो सकती है, and their situation can आपकी bless. परिस्थिति बदल भी सकती God है। can also bless. प्रभु आशीष तो देता Through है your prayer. आपकी प्रार्थना के द्वारा, But until and unless they believe in Jesus लेकिन Christ, जब तक वो लोग यीशु में विश्वास नहीं करेंगे they will never become the child of तो God. प्रभु की संतान नहीं बनेंगे।
But because of your faith, लेकिन आपके विश्वास की वजह because से, of your prayer, आपकी प्रार्थना की they वजह are से delivered. वो छुटकारा They are पाते हैं, healed. चंगाई पाते हैं। But that person also पर वो व्यक्ति need to believe in उसको Jesus. विश्वास करने की जरूरत है। So believing Jesus, healing is completely different. परमेश्वर में विश्वास करना और परमेश्वर की चंगाई को पाना दो अलग चीज है। And to enter God's kingdom और प्रभु के राज्य में जाने के is लिए only who believe in Jesus. ये वही लोग कर पाएंगे जो प्रभु में विश्वास करते हैं। Not that you receive the blessing, ये नहीं कि आपने हीलिंग पा ली not that you receive the God's या power, आशीष पा ली, but the person who believe in लेकिन जो Christ विश्वास करता है यीशु, only reign with Jesus Christ. वो ही यीशु के साथ राज करेगा। So that is the God is teaching us here. तो परमेश्वर आज मैं We यही never सिखाता हूं। know that this demon-possessed lady was having a salvation. हमें नहीं पता कि जिस लड़की को ठीक किया है यीशु और मसीह believe ने, in Christ. वो उद्धार पाएगी कि नहीं Bible पाएगी। is recorded. बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। Bible is recorded about her mother. बाइबल में तो उसकी मम्मी के बारे में लिखा है The great कि faith. उसका विश्वास So बड़ा। God is teaching us here to have faith in तो God. परमेश्वर आज मैं ये कह रहा है हमें विश्वास रखना है। So that when God sees your faith, जब परमेश्वर and आपका why विश्वास- God also ignoring her? क्यों यीशु उसे इग्नोर कर रहे थे? In the beginning part, God can do it. शुरू में प्रभु ठीक कर But सकते थे। God is trained that lady प्रभु उस औरत को तैयार कर रहे थे to believe in deeper and deeper and कि उसका deeper. विश्वास प्रभु में गहरे पे गहरा होता जाए And then she never give up. और वो हार ना माने। So God in the end, और अंत में God प्रभु saw that this lady is really a great faith. तो यीशु मसीह ने दिखाया So sometimes God will test you. कभी कभी परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। Sometimes God will allow things to happen. प्रभु अपने जीवन में कुछ गलत भी होने देगा How much you have faith or not? कि आपका विश्वास कितना है प्रभु चेक But करेगा। in that testing period, पर उस समय में if you are not persistent, in अगर faith in आप God, खड़े नहीं रहे यीशु, if you are not faith and if you are विश्वास not, नहीं किया, but if you give up, आपने हार मान ली, then you will not see the glory of God. आप प्रभु की महिमा नहीं देख पाएंगे, You will not see the power of God. प्रभु का सामर्थ नहीं देख पाएंगे। So this is the lady that God teaching us. तो यहाँ पर हम इस औरत के बारे में So पढ़ें। sometimes God will train you कभी कभी प्रभु आपको ट्रेन करता है step by step, and He will allow you things to happen. और वो आपके जीवन में कुछ गलत होने And देता He है, is checking your heart. आपके दिल को चेक Oh, करता this है thing happens. He give up me or not? कि अरे ऐसा इसके जीवन में होगा तो छोड़ेगी मुझे नहीं छोड़ेगी। God allow. God is checking you. God hear your cry. प्रभु की प्रार्थना God सुनता hear है, your prayer. आपके रोने को सुनता है। But He want to know that you really faith, or He really want to know that even to the point of death you will be trusting Him or not. पर यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि आप अपने मृत्यु के अंत समय तक क्या उसमें विश्वास बांधे रखोगे। But the lady, God see, and He was testing one time, testing two times, testing three times, and the end that yes, this lady is a real child of God. और ऐसे यीशु मसीह ने उसकी एक बार, दो बार और तीन बार परीक्षा ली और बाद में पता चला हाँ इस लड़की का प्रभु में विश्वास। And then also she is not a Jew. और वो यहूदी नहीं She थी, is not a Christian. क्रिश्चियन नहीं थी, She is a Gentile. लेकिन वो तो जेंटाइल थी, Unbeliever. अविश्वासी थी, But believe in पर Jesus. विश्वास तो करती थी यीशु में। See, that is the things that God, today many people they are not coming to church. आज आप देखें बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, Or today many people they are not declare themselves that they are क्योंकि Christian. कहते नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, But some people believe in Jesus. पर बहुत सारे लोग आज भी यीशु विश्वास They करते have हैं, faith in Jesus. विश्वास करते हैं। So God is not all about the religion, God is not all about the things, but God is all about your faith. परमेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जाते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आपका विश्वास है कि नहीं, बस इससे। So when you have faith in God, जब आपका विश्वास होता है परमेश्वर, when you trust in God, भरोसा रखते हैं, no matter what चाहे कुछ भी you हो जाए, your condition, आपकी परिस्थिति कैसी हो, लेकिन अंत में you will see the miracle of God. आप चमत्कार देखेंगे। And but the person who give up, लेकिन जो व्यक्ति हार मान जाता है, they will not see the miracle of God. चमत्कार नहीं देखते। So when we see in the Bible, तो बाइबल में हम देखते from हैं the beginning to the end, शुरुआत से अंत तक all the people who come to Jesus, जो लोग यीशु के पास आते हैं, Jesus never said that, oh, I will heal you. यीशु मसीह नहीं कहते मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, But everyone who faith and come to लेकिन जो Jesus, विश्वास बनाए रखता है, God always heals them. प्रभु ठीक करता है, God always delivers them. छुटकारा देता है। So our faith is very, very तो important. हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। Without faith, बिना विश्वास के you will never see glory of हम God. परमेश्वर की महिमा को Without नहीं देख faith, सकते। बिना विश्वास के You will never receive His answer. परमेश्वर का जवाब नहीं पा सकते। Without faith, बिना विश्वास you के will never become an ordinary person. आप एक असाधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। Or without faith, बिना विश्वास you will के never be anointed. आप अभिषेक नहीं पा Or सकते। without faith, बिना विश्वास even के you can't able to perform miracles. आप चमत्कार भी नहीं कर सकते। But when you have faith, पर जब विश्वास होगा, your faith move the heart of God. तो प्रभु के दिल को हिला देगा। So by this lady faith, तो इस औरत के विश्वास से Jesus was really moved. यीशु मसीह भी हिल गए। Jesus was really moved His heart. यीशु मसीह का दिल पिघल गया And He just said, oh woman, और उन्होंने कहा, ए औरत, you are having such a great faith. तेरा विश्वास महान है। Yes,
You are Gentile, हाँ तुम हो, but your daughters are here. चाहे तुम हो गैर यहूदी पर फिर भी तुम्हारी बेटी ठीक होती है। So your faith is very, very important हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। to bless our church. हमारे चर्च को bless Your करने में, faith is very, very important to grow our church. हमारे चर्च को बढ़ाने Your में faith is very, very आपका important विश्वास भी बहुत for जरूरी है। India. भारत के लिए, Your faith is very, very important आपका विश्वास for sick people. बीमार लोगों के लिए, Your faith is very, very important for our government. हमारी सरकार के लिए। So our faith हमारा can विश्वास change India. भारत को बदल Our faith हमारा can विश्वास change your husband, wife. अपनी पति पत्नी को बदल सकता है। Your faith आपका can विश्वास change your children. अपने बच्चों को बदल सकता है। Your faith can change your mother, father. आपका विश्वास अपने माता पिता को बदल सकता है। Your faith can change your mother-in-law, आपका father-in-law. विश्वास अपने सास ससुर को बदल सकता है। You might be having mother-in-law, बोलते father-in-law. हैं कि सास ससुर आपके You हो, might be very struggle. परेशान हो, Or you might be having बहू. या बहू हो आपकी। से हम कभी-कभी ना बहू बहुत परेशान होते हैं mother-in-law को. But when you have faith in God, लेकिन जब आपका प्रभु में विश्वास होता है, that बहू will change. तो आपकी बहू भी बदल That in-law will change. आपके सास ससुर बदल That जाएंगे, children will change. बच्चे बदल जाएंगे, That brother sister will change. आपके भाई बहन बदल And जाएंगे, your parent will आपके change. माता पिता बदल Your जाएंगे, church will change. कलीसिया बदल Your जाएगी, pastor will change. पास्टर बदल जाएंगे, By your faith, आपकी your विश्वास pastor become a great. आपकी पास्टर महान बन सकती है। But the end, पर अंत में reward is in you, इनाम आपका होगा, not me. इनका नहीं। So that is the things. So we all understand together. आइए हम खड़े हो जाए।